السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مسلیا و مسلما وبعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ رواہ البخاری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ بزرگوں اور دوستو، اسلامی بھائیوں، آج کی مجلس میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں نیک اور بد کی موت میں فرق۔ جس طرح نیک آدمی اور برے آدمی کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، ٹھیک اسی طرح نیک انسان اور برے انسان کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا برے کام کرنے والوں کا یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے؟ کیا ان کا مرنا جینا ایک جیسا ہوگا؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ان مجرموں کا، ان گنہگاروں کا یہ خیال ہے کہ ان کا اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کا مرنا جینا ایک جیسا ہوگا، تو یقینی طور پر ان کا یہ خیال برا ہے، کیونکہ نیک انسان اور برے انسان کی موت اور حیات میں بہت فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعدد آیات میں اس کو بیان فرمایا۔ نیک اور صالح انسان کی موت کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں اس طرح بیان فرمایا۔ فرمان باری ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ بھی تجھ سے خوش۔ اس طرح لوٹ کر اپنے رب کی طرف واپس چلی جا کہ اللہ بھی تجھ سے راضی اور تو بھی اللہ سے راضی، پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ عظیم خوشخبری مومن کو اس کی موت کے وقت دی جاتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی تھے۔ چلو اب تیرا وقت دنیا میں ختم ہوا، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے برخلاف ایک برے آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 93۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ اس وقت کو، اس لمحے کو دیکھ سکتے جبکہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا کر انہیں کہہ رہے ہوں گے، اپنی جانیں نکالو، اپنی روحوں کو نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی کیونکہ تم اللہ پر جھوٹ بولتے تھے اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ غور فرمائیں، ظالم کی موت کتنی بری اور کس قدر سخت ہوتی ہے کہ فرشتے اسے موت کے وقت ہی سے اللہ کے عذاب کی دھمکی سنا دیتے ہیں۔
बल्कि एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये इरशाद फरमाया कि मौत के वक्त फरिश्ते बुरे लोगों को मारते भी हैं, उनके चेहरों पर, उनके चूतलों पर मारते हैं। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़कैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, फिर उनकी कैसी दुर्गत होगी जबकि फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करते हुए उनके चेहरों पर मारते हैं, उनके चूतड़ों पर मारते हैं। तो मार मार कर बुरे लोगों की रूह को फरिश्ते निकालते हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, इस्लाम भाइयों, सूरह नहल की एक आयत में, आयत नंबर 28-29 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बुरे लोगों की मौत की कैफियत को बयान किया। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम फ़अल्क़ौ सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सू बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुन्तुम तअमलून फदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फ़ीहा फलबीस मथवल मुतकब्बिरीन। वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब उन्हें फरिश्ते मौत देते हैं तो ये गुनहगार और ये जालिम लोग चापलूसी करने लगते हैं और कहते हैं कि मा कुन्ना नअमलु मिन सू, हम कोई बुरे आदमी नहीं थे, बुरा काम करने वाले नहीं थे। तो फरिश्ते कहते हैं, बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुन्तुम तामलून, क्यों नहीं, अल्लाह ताला को पूरी खबर है जो तुम करते थे। फदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा, चले जाओ, दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में, हमेशा उसी में रहना है। फलबिइस मथवल मुतकब्बिरीन, पस क्या बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों का। इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मौत की वक्त का वो लम्हा है जो एक बुरे आदमी और एक बुरे इंसान को पेश आता है कि मौत के वक्त उसे फरिश्ते अल्लाह के अजाब की धमकी भी सुनाते हैं और उनको मारते भी हैं, उनके चेहरों पर मारते हैं, उनके जूतों पर मारते हैं, उनको उनकी रूह जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम भाइयों, ये मौत है बुरे लोगों की और अच्छे लोगों की मौत, नेक इंसान की मौत का भी अल्लाह ने जिक्र किया है, उसको भी बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नहल ही की आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तामलून। वो नेक लोग कि जब फरिश्ते उन्हें मौत देते हैं, उनकी रूह कब्ज़ करते हैं तो कहते हैं सलामुन अलैकुम, सलामती ही सलामती हो तुम्हारे ऊपर। उदखुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तामलून, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ अपने नेकियों के जरिए, नेक अमल के सबब जो तुम दुनिया में करते थे। दुनिया में तुम जो नेक अमल करते थे उसके सबब, उसके जरिए तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। और इस आयत से मालूम हुआ कि फरिश्ते जब नेक लोगों को मौत देते हैं, उसकी रूह कब्ज़ करते हैं तो उसे सलामती सुनाते हैं, उन्हें सलाम कहते हैं और सलामती की खुशखबरी सुनाते हैं और जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं कि आप जन्नत में दाखिल हो जाओ अपनी नेकियों के बदले। तो किस कदर फर्क है एक बुरे इंसान और एक नेक इंसान की मौत में। बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक और बद इंसान की मौत को एक हदीस में इरशाद फरमाया, कई हदीसों में इरशाद फरमाया, लेकिन हम आपके सामने एक हदीस सुनाते हैं, सही बुखारी की हदीस। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा लिक़ा अल्लाह अहब्बल्लाहु लिक़ाहु व मन करिहा लिक़ा अल्लाह करिहा अल्लाहु लिक़ाहु। जो शख्स अल्लाह ताला की मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात करने को पसंद करता है, और जो शख्स अल्लाह की मुलाकात को नापसंद करता है तो अल्लाह ताला भी उसकी मुलाकात को नापसंद करता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये हदीस सुनी तो कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इससे मुराद मौत को नापसंद करना है तो उसे तो हम सब नापसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा ज़ालिका, बात ये नहीं है, बल्कि बात ये है कि वलाकिन्नल मुमिन इज़ा हज़रहुल मौत बुश्शिरा बिरिज़वानिल्लाहि व करामतिही।
बात यह है कि मोमिन को जब मौत का वक्त आता है, फरिश्ते जब उसके पास आते हैं तो उसे अल्लाह की रजामंदी की खुशखबरी सुनाते हैं और अल्लाह के यहाँ उसकी जो इज्जत होने वाली है उसकी खबर सुनाते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह बड़ा करीम है। फलैसा शैउन हब्बा इलैहि मिम्मा मामहू, तो उस वक्त उसको सबसे ज्यादा जो पसंद होती है वो ये है कि वो अल्लाह से मुलाकात करे। उस वक्त अल्लाह ताला की मुलाकात के सिवा कोई और चीज उसे महबूब नहीं होती है। वो चाहता है कि वो अल्लाह से मुलाकात करे और अल्लाह के पास उसकी जो इज्जत और तकरीम होने वाली है उसको वो देखे, और उसी वक्त अल्लाह ताला भी उससे मिलना पसंद करता है, उससे मुलाकात को पसंद करता है। फअहब्बा लिक़ा अल्लाह व अहब्बा अल्लाहु लिक़ाहु व इन्नल काफ़िर इज़ा हज़रा बुश्शिरा बिअज़ाबिल्लाहि व उक़ूबतिहि फलैसा शैउन अकरहा इलैहि मिम्मा अमामहु फ़करिहा लिक़ा अल्लाह व करिहा अल्लाहु लिक़ाहु। और जब काफिर की मौत का वक्त आता है, बुश्शिरा बिअज़ाबिल्लाहि व उक़ूबतिहि, तो उसे अल्लाह के अजाब की खुशखबरी सुनाई जाती है और अल्लाह के यहाँ उसको जो अजाब मिलने वाला है उसको उसकी खबर दी जाती है। तो वो उस वक्त अल्लाह से मिलना नापसंद करता है और अल्लाह भी उससे मिलना नापसंद करता है। तो बुजुर्गों और दोस्तों इस्लामी भाइयों, एक मोमिन, एक मुसलमान, एक नेक आदमी को जब फरिश्ते मौत देते हैं तो कितनी उसे खुशखबरी सुनाते हैं, उसे सलामती सुनाते हैं, जन्नत में जाने की उसे बशारत सुनाते हैं और कहते हैं कि नेक आदमी, तेरा वक्त दुनिया में अब खत्म हो गया, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे गम करने की कोई जरूरत नहीं है। आओ, अल्लाह तुमसे राजी है और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में महल बना के रखा है। अब चलो, अब तुम्हें कोई वहां थकान नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, अब चल, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। और जब बुरे लोगों को मौत देते हैं तो फरिश्ते उसे अल्लाह के अजाब की धमकी सुनाते हैं, कहते हैं बदबख्त इंसान, तेरा वक्त खत्म हुआ, तो चल अब अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे नाराज है और तुझे सजा देने वाला है, अब चलो, और तुम्हारा वक्त दुनिया में खत्म हो गया, तुमने दुनिया में बड़े मजे उड़ाए और अल्लाह की आयतों को झुटलाया और बुरे लोगों के साथ रहे और बुरे काम किए, अब तू कहीं नहीं बच सकता है, कहीं नहीं छुप सकता है। चलो, तो बुजुर्गों और दोस्तों इस्लामी भाइयों, हमें और आपको किस किस्म की मौत चाहिए? हमें और आपको एक नेक इंसान और एक मोमिन की मौत की जैसी मौत चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करना चाहता है, जो अल्लाह तबारक व तआला से मिलना चाहता है, फलयअमल अमलन सालिहा, उसको चाहिए कि वो नेक अमल करे, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराए। तो बुजुर्गों और दोस्तों इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी रहे मौत के वक्त और हमें आसानी से और हमें अच्छी मौत आए और मौत के वक्त फरिश्ते हमें अल्लाह की रजामंदी की खुशखबरी सुनाए, जन्नत की खुशखबरी सुनाए, तो हमें चाहिए कि हम नेक अमल करें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं, इस नेकी पर कायम रहें और इस्तिकामत इख्तियार करें। मौत के लिए, अच्छी मौत के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छी मौत अता फरमाए, और जो भी मुसलमान इस दुनिया से जाने वाले हैं, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अच्छी मौत अता फरमा, बुरी मौत से बचा और नेक रास्ते पर चला, नेक लोगों की सोहबत हमें अता फरमा और मरने के बाद जन्नत में जगह अता फरमा और जहन्नम की आग से बचा। आमीन व आखिर